اور اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے تھے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان نے اہم نیوز کانفرنس کی ہے۔ اس نیوز کانفرنس میں اہم انکشافات کیے گئے ہیں ان کی جانب سے۔ امتیاز میر کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے اسلحہ رعایت حسین نے دیا تھا۔ اس نیوز کانفرنس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ امتیاز میر کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے اسلحہ رعایت حسین نے دیا تھا۔ زینبیون بریگیڈ نے رعایت حسین عرف مولوی کوڈ نیم حمزہ دیا تھا۔ رعایت حسین عرف مولوی انتہائی مطلوب اور خطرناک دہشت گرد ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان کی اس نیوز کانفرنس میں اہم انکشافات پیش کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریاست حسین عرف مولوی انتہائی مطلوب اور خطرناک دہشت گرد تھا۔ گرفتار دہشت گرد متعدد مذہبی ٹارگٹ کلنگز میں بھی ملوث رہا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی ٹی ڈی کے ہاتھوں زینبیون بریگیڈ کے 4 دہشت گردوں کی بھی گرفتاری یقینی بنائی گئی۔ ہائی پروفائل دہشت گرد معصوم رضا کو بھی رعایت حسین نے اسلحہ فراہم کیا تھا۔ معصوم رضا ساتھی اسرار گلگتی کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا۔ اس اہم نیوز کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ زینبیون بریگیڈ کے دہشت گرد معصوم رضا نے بھی متعدد ٹارگٹ کلنگز کی تھی۔ دہشت گرد رعایت حسین کا کام زینبیون بریگیڈ میں مرکزی سہولت کار کا تھا۔ گرفتار دہشت گرد نے کراچی میں مختلف ٹیمیں بھی بنا رکھی تھیں، جبکہ اس نیوز کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹیم کا ہر ممبر صرف رعایت حسین کو جانتا تھا، آپس میں ان کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ رعایت حسین کا کام اسلحہ ٹرانسپورٹ، رہائش اور خرچہ دینے کا بھی تھا، جبکہ معصوم رضا ساتھی اسرار گلگتی کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس اہم نیوز کانفرنس میں گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ معصوم رضا ساتھی اسرار گلگتی کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا۔ رعایت حسین کا کام اسلحہ ٹرانسپورٹ، رہائش اور خرچہ دینے کا بھی تھا۔ اس اہم نیوز کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹیم کا ہر ممبر صرف رعایت حسین کو ہی جانتا تھا، آپس میں ان کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ گرفتار دہشت گرد نے کراچی میں مختلف ٹیمیں بھی بنا رکھی تھی۔ اس اہم نیوز کانفرنس میں یہ بھی انکشافات کیے گئے ہیں سی ٹی ڈی کی جانب سے۔ دہشت گرد رعایت حسین کا کام زینبیون بریگیڈ میں مرکزی سہولت کار کا تھا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ زینبیون بریگیڈ کے دہشت گرد معصوم رضا نے متعدد ٹارگٹ کلنگز کی ہیں۔ زینبیون بریگیڈ کے دہشت گرد معصوم رضا نے بھی متعدد ٹارگٹ کلنگز کی گئی ہیں۔ اس اہم نیوز کانفرنس میں یہ انکشافات کیے گئے ہیں۔ معصوم رضا ساتھی اسرار گلگتی کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا۔ اس وقت پریزیڈنٹ کوئٹہ پریس کلب مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجیب صاحب، اس اہم نیوز کانفرنس جو کی گئی ہے اس میں کچھ انکشافات کیے گئے ہیں، جیسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ معصوم رضا ساتھی اسرار گلگتی کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا۔ زینبیون کے بھی بارے میں بات کی گئی کہ زینبیون بریگیڈ کے دہشت گرد معصوم رضا نے بھی متعدد ٹارگٹ کلنگز کی ہیں۔ اس نیوز کانفرنس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ مجیب صاحب سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کو بتائیں گے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس کی گئی ہے، آپ نے ملاحظہ کی، اور اس نیوز کانفرنس میں اہم انکشافات ان کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ زینبیون بریگیڈ کے دہشت گرد معصوم رضا نے بھی متعدد ٹارگٹ کلنگز کی ہیں۔ دہشت گرد رعایت حسین کا کام زینبیون بریگیڈ میں مرکزی سہولت کار کا ہے۔ کراچی گرفتار دہشت گرد نے کراچی میں مختلف ٹیمیں بھی بنا رکھی تھی، جبکہ ٹیم کا ہر ممبر صرف رعایت حسین کو ہی جانتا تھا، آپس میں ان کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ رعایت حسین کا کام اسلحہ ٹرانسپورٹ، رہائش اور خرچہ دینے کا تھا۔ معصوم رضا ساتھی اسرار گلگتی کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوا تھا۔ اس اہم نیوز کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زینبیون بریگیڈ کے دہشت گرد معصوم رضا نے بھی متعدد ٹارگٹ کلنگز کی ہیں، جبکہ دہشت گرد رعایت حسین کا کام زینبیون بریگیڈ میں مرکزی سہولت کار کا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں پریزیڈنٹ کوئٹہ پریس کلب مجیب صاحب۔ مجیب صاحب، کچھ دیر قبل پریس کانفرنس کی گئی ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی جانب سے، اس اہم نیوز کانفرنس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یہ بہت ہی اہم نوعیت کی پریس کانفرنس تھی۔ اس میں اس پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا ہے جو بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ یہاں پہ را فنڈڈ ایلیمنٹ جس میں بی ایل اے، بی ایل ایف وغیرہ، اور پھر ان کی نرسری جو دہشت گردوں کو پروان چڑھاتی ہے بی وائی سی،
उसका तफसीली अहाता किया गया। इसमें बताया गया कि किस तरह नौजवान जो पढ़े लिखे हैं और वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पढ़े हुए हैं, सरकारी मुलाजिम भी थे, वो किस तरह नौजवानों को दहशतगर्दी पे राग़िब करते हैं और किस तरह उनको पैसे देके और बहका कर इस तरफ लाया जाता है। भारी तादाद में असला गोला बारूद भी बरामद किया गया। यहाँ पे इस नेक्सस को बेनकाब करते हुए बताया गया कि किस तरह इससे निमटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पे मौसर अंदाज में हिकमत अमल दरामद हो रहा है। इसमें बलोचिस्तान हुकूमत, वफाकी इदारे और 7 इदारे मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दी में काफी हद तक कमी आ गई है। यहाँ पे फेसलेस कोर्ट बनने जा रहे हैं जिसमें दहशतगर्दों को जल्द सजाएं हो सकेंगी और किसी जज को किसी खौफ का सामना नहीं करना होगा। इसके अलावा जो पुलिस एरिया कर दिया गया, जो पहले ज्यादातर एरिया लेवीज में होता था, उसको कन्वर्ट जब आप पुलिस में कर देंगे तो वहां पे भी मौसर अंदाज में आगे बढ़ा जा सकेगा। तो बड़ी अहम नौयत की है। इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा नुमाया बताई गई वो ये कि दहशतगर्द तंजीमें जिनमें BLA, BLF वगैरह शामिल हैं, ये खवातीन और बच्चों को हायर कर रही हैं अपने मफादात के असूल के लिए। इसके सदेबाब के लिए भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जो बच्चों को देखेंगे कि उनकी जो जहन साजी की गई, उनको ब्रेन वॉश किया गया, उनको बेहतर तौर पे बेहतर पाकिस्तानी शहरी बनाया जाए। मुझे साहब, गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराज़ी बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किए जाने का मकसद बड़े वाक़यात के हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाना भी है। बिल्कुल, बड़े वाक़यात जितने भी यहाँ पे हो रहे हैं, हमने देखा है कि बाद दीगरे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और जो लोग पकड़े जाते हैं वो ये बताने में आप कोई आर महसूस नहीं कर रहे कि किस तरह उनको किस तरह शामिल कराया गया, किस तरह उनसे दहशतगर्दी कराई गई। कुछ लोग इसमें अक्सर ऐसे हैं, नौजवान जज्बाती हैं, जिनको पहले यही कहा जाता है कि वो हकूक की जंग लड़ रहे हैं और उनसे एहतजाज कराए जाते हैं, उनसे रोडों पे धरने दिलवाए जाते हैं और बाद में उनको इस तरफ ले जाया जाता है। इसकी मिसाल BYC है हमारे सामने, जो पहले सिर्फ इसलिए बलोच हकूक के लिए उठी थी, एहतजाज करने, और उसके बाद ये तशद्दुद होता गया और अब इस जगह से दहशतगर्द निकल रहे हैं। और ये नौजवान होते हैं बिल्कुल जिनके कच्चे ज़हन होते हैं, इनको बताया ये जाता है कि आप अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये कठपुतलियां बन के बैरूनी ताकतों के हाथों में खेल रही हो। सर, सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर देखा जाए तो सिविलियंस और सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतें भी हुई हैं। ये बात अवाम में वो खदशात को बढ़ा सकती है मजीद? देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग में हम शरीक हैं इस वक्त, और हमारे जोग्राफियाई हालात को आप देखें तो अफगानिस्तान और इंडिया पूरी तरह इसमें मुलव्वस हैं। यहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ के लोग साथ ही रहिएगा मजीद साहब। हमें इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मकसूद साहब ने भी ज्वाइन किया है, वो भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। मकसूद साहब, अब से कुछ देर कबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और DIG CTD बलूचिस्तान की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें नेटवर्क को बेनकाब भी किया गया है। इस हवाले से आप क्या तज्जिया देंगे? जी हाँ, देखें, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स है। जिस तरह बलूचिस्तान के बारे में बात की है, ये इससे पहले DG HPR से इस पर एक्सप्लेन कर चुके थे, स्पेशली जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही है। स्पेशली अभी जो एक इदारा बना है, प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर बना है, जिसमें तमाम लोग मौजूद होंगे हर प्रोविंशियल लेवल पर, तो वो कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से होगी। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी देखिए, पहले भी बताया था कि उन्होंने कमेटीज बनाई हैं कि जिसमें 1 अरब रुपए दिए जाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रहते हुए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज बात की उन्होंने कि पंजगुर के में एक दहशतगर्द पकड़ा गया है और जो पढ़ा लिखा था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में वहाँ प्रोफेसर था, लेकिन जब पकड़ा गया तो उससे एक्सप्लोसिव वेपन्स इक्विपमेंट मिला है और फिर उसके कनेक्शंस भी एस्टेब्लिश हुए हैं विद दहशतगर्द कमांडर्स जो उधर अफगानिस्तान वाली साइड पे हैं। और फिर उसके साथ उन्होंने ये भी एस्टेब्लिश किया कि बच्चे भी इस्तेमाल हो रहे हैं 18 से 20 साल के दरमियान में, तो एक वो सीरियस सिचुएशन है। लेकिन हम कंक्लूजन ये ड्रा कर सकते हैं कि इस दहशतगर्दी के जो प्लेटफॉर्म, जो एक फीडर इदारा है, वो BYC है। यहाँ से लोग इंडोक्ट्रिनेट होते हैं, इनको ब्रेन वॉशिंग करके उनको यहाँ पे भेजा जाता है। सेकंड ये है कि जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन जो हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो भी किए हैं बड़े कामयाबी के साथ हुए हैं और इसमें हम कामयाबियां देख सकते हैं विच आर विजिबल ऑन ग्राउंड। और फिर गवर्नेंस इंप्रूवमेंट हुई है और यहाँ पे बलूचिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान की फुल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है
और तो मेरे ख्याल में एक सक्सेस स्टोरी है बलूचिस्तान प्रोविंस के लिए, तो बाकियों प्रोविंस में जहाँ दहशतगर्दी उनको भी इनको अकॉर्डिंगली फॉलो करना चाहिए। मकसूद साहब अभी इस वक्त जो मुजीब साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मुजीब साहब, इस वक्त गिरफ्तारियों के हवाले से आप क्या तज्जिया करेंगे? गिरफ्तार दहशतगर्दों के जो एतराज़ात से सामने आए हैं, उससे क्या मुस्तक़बिल सिक्योरिटी खतरात का मौसर हल निकल सकता है? इस पर आप क्या कहेंगे? मुजीब साहब सुन पा रहे हैं? मुजीब साहब सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीआईजी सीटीडी बलूचिस्तान की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। इस अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बड़े नेटवर्क को बेनकाब किया गया है। कुछ इंकशाफात भी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ज़ैनबियून ब्रिगेड के दहशतगर्द मासूम रज़ा ने भी मुतादिद टारगेट किलिंग की है। दहशतगर्द रियायत हुसैन का ज़ैनबियून ब्रिगेड में मरकजी सहूलतकार का है। इस वक्त प्रेसिडेंट कोयटा मुजीब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कुछ इस हवाले से तजिया जानना चाहेंगे। मुजीब साहब, इस अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारियों के हवाले से भी बात की गई है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराज़ात से मुस्तक़बिल सिक्योरिटी खतरात का कोई मौसर हल निकल सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मौसर हल के लिए नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद जारी है और नेशनल एक्शन प्लान में इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, चाहे वो हुकूमत बलूचिस्तान हो, पुलिस हो, सीटीडी हो, इसके अलावा जो वफाकी इदारे हैं जिनमें इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और सिक्योरिटी इदारे हैं, सारे मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि नौजवानों में जो उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है उसके साथ जवाब के लिए भी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं अपने एमपीएस को भी, मिनिस्टर्स को भी। वो अपने इलाकों में जाएं, वहाँ बैठ के कचहरियां लगाएं और लोगों के मसाइल सुने, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि एहसास महरूमी और पसमानदगी की वजह से नौजवान तेजी से मुतनफ़र हो रहे हैं। इस पर भी कि सज़ेबाब पर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन जो बच्चे हैं, खुसूसन जो कम उम्र बच्चे हैं, उनके नापुख्ता ज़हनों को परागंदा किया गया है और इसके लिए BYC इस्तेमाल हुई है। तमाम में इंडियन पैसा उसका आ रहा है और यहाँ पे BYC के जरिए नौजवानों को पहले एहतजाज पर उकसाया जाता है और कहा जाता है कि वो खूब की जंग लड़ रहे हैं, बाद में उनको दहशतगर्दी की तरफ राग़िब किया जाता है और फिर उनसे ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इन तीन तरफ गिरफ्तारियों और इतराफात के बाद तो कोई शक व शुबा ही नहीं रहा कि कौन किस तरह कैसे बलूचिस्तान में खेल खेल रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत से मौसर तौर पर निपटा जा रहा है और तमाम स्टेक होल्डर, इवन आवाम भी बलूचिस्तान के चाहते हैं कि अमन हो और वो मुकम्मल ताउन भी कर रहे हैं हुकूमती कार्रवाइयों में उनके साथ। सर, इस हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्चों के हवाले से भी बात की गई है कि बच्चे 17-18 साल के उम्र के बच्चे, इनको इस्तेमाल किया जाता है और सोशल मीडिया का भी इस पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है? इस हवाले से आपका क्या तज्जिया है? ये बड़ी अहम चीज़ है। पहली दफ़ा ये बच्चे जो बॉम्बर बॉयज़, बलूचिस्तान बॉम्बर बॉयज़ का नाम हमने 2013 में सुना था, जब 15 के करीब बच्चे गिरफ्तार किए गए थे और ये तमाम बच्चे DLA के लिए बम रखने का, ग्रेनेड फेंकने का और इस तरह के सहूलतकारी करने के काम करते थे। पहली दफा उस वक्त सामने आया था, जिसके बाद उस वक्त की हुकूमत ने और इस वक्त के जो इदारे थे उन्होंने इसका सदेबाब किया और इनको रिहैब सेंटर्स में भेज दिया था बच्चों को। लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि खवातीन और बच्चों का इस्तेमाल एकदम बढ़ने लगा है और वो बच्चे जो 2-3 साल पहले तक स्कूल में थे, अब वो बड़े होकर कॉलेज में आए और वो बाकायदा दहशतगर्द बनते हैं। पहले वो सिर्फ पथराव तक, एहतजाज तक महदूद रहते थे, लेकिन अब वो बाकायदा दहशतगर्दी की तरबियत लेने चाहते हैं और इसके सदेबाब के लिए बाकायदा सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। हुकूमत इस मामले को देख भी रही है कि जो ब्रेन वॉशिंग हो रही है, इनके जो नर्सरी है उस पर हाथ डाला जाए और ये नर्सरियाँ चाहे आप किसी भी बलूचिस्तान के इलाके में ले लें, वो हकूक के नाम पे बनाई जाती हैं और बाद में वो रंग इख्तियार कर लेती हैं दहशतगर्दी। सर, बिल्कुल की जाती है। सर, बच्चों की बात करी हमने और सोशल मीडिया की बात करी कि सोशल मीडिया किस हद तक ये इन्फ्लुएंस फैलाता है, तो आप क्या पेरेंट्स के रोल को किस तरह से देखते हैं कि वालिदैन का इसमें क्या रोल है? देखिए, वालिदैन तो बहरहाल इसमें जिम्मेदार हैं ही हैं। हम एज अ मास्टर, हमारा कसूर है कि हम अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देते
और वो सोशल मीडिया उनको बिल्कुल अपने मर्जी के मुताबिक डालता जाता है। अगर वालिदैन इस तरफ तवज्जो दें कि उनकी औलाद क्या कर रही है, सोशल मीडिया किस तरह इस्तेमाल कर रही है, क्या हो रहा है, तो सूरत में बेहतरी आ सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं इंटीरियर बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ भी ये लोग फैलते जा रहे हैं, वहाँ पे वालिदैन उस तरह फोकस नहीं कर पा रहे। इवन जो दहशतगर्द खवातीन बच्चियां भी पकड़ी गई हैं, उनके घर वाले भी लाइव थे कि उनकी बेटी बहनें क्या कर रही हैं और वो किस तरह इसमें सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन के खुदकुश बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इस हवाले से उनमें आगाही जरूरी है और उनको खुद तवज्जो देनी होगी। अगर वो चाहते हैं कि उनकी औलादें एक बेहतर शहरी, एक बेहतर पाकिस्तानी बन सके, तो उनको देखना होगा कि वो क्या सोशल मीडिया पे देख रही हैं और उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल सर ये भी बताएगा, अगर ये इतनी बड़ी तादाद में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र भी किया गया है, तो दहशतगर्दी के वाक़यात मुकम्मल तौर पर काबू क्यों नहीं पा लेते? देखिए, दहशतगर्दी मुकम्मल काबू पाना इतना आसान नहीं है। हमने देखा अफगानिस्तान में भी तवील अरसे तक जंग रही, वहाँ पे भी दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो सकी। यहाँ पे मसला ये है कि दहशतगर्दी अंदरूनी नहीं है, दहशतगर्दी को बैरूनी पुष्ट पनाही हासिल है। जब वहां से आग और पैसा झोंका जा रहा है बलूचिस्तान में, तो रुक नहीं सकता। पैसे के लिए इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इस फंडिंग को रोकने के लिए हमने मौसर इकदाम करने शुरू कर दिए। हवाला उंडी पे भी कार्रवाइयां होती हैं। बैंक ट्रांजैक्शन तो होती नहीं है, लेकिन हवाला उंडी के जरिए बहुत होती है। और फिर ये जो लोकल पता वसूल किया जाता है ना दहशतगर्द तंजीमें, चाहे वो कोयला खानों से हो या अगवा बराए तावान के नाम पे हो या किसी और इंडस्ट्रियल से पता लिया जाए, तो ये वो तरीके हैं जिनके जरिए फंड रेजिंग करते हैं, बाहर से इनको पैसा आता है। इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि इसको किसी तरह रोका जा सके। बिल्कुल सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हुए ये भी कहा गया है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का तनासुब कम रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? दहशतगर्दी में बतदरीज कमी आ रही है। जब आप दहशतगर्दों को ऑन दी रन रखेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तवातर के साथ जारी रखेंगे, तो दहशतगर्दों को किसी एक जगह ठहरने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी तादाद में बहरहाल कमी तो जरूर आई है, लेकिन ये खत्म बहरहाल हो गई। इसके लिए बाकायदा जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद जारी है। टाइम तो लगेगा, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है। बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन बहाल हो जाएगा। अब भी अगर आप देखें तो कोयटा और उसके अतराफ के इलाके में बहुत ज्यादा अमन है पहले के मुकाबले में, लेकिन अंदरून बलूचिस्तान क्योंकि दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कार्रवाइयों में थोड़ी सी टाइम लग जाता है। इसलिए वहाँ पे कुछ वाकयात आपकी रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन बेहतरी बदतरी इसमें आ रही है। बिल्कुल सर बलूचिस्तान की हमने बात की और इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बात की गई है कि आदाद शुमार में वाज़ेह है कि दहशतगर्दी ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जराइम, दहशतगर्दी ताल्लुकात भी ज़ेर बहस आए। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल हकीकत है। ये सारे मिल्क के स्टेक होल्डर्स की जानिब से जब एक पेज पे आते हैं, जब भी मौसर हो सकता है। बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ इसलिए मौसर हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो ऑन बोर्ड है, उसकी जो फोर्सेज हैं जिसमें पुलिस है वो ऑन बोर्ड है, सीटीडी ऑन बोर्ड है, हसास इदारे जिनमें वफाकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, वफाकी सिक्योरिटी इदारे सारे मिलकर मरबूत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन हम पश्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि वहाँ गवर्नमेंट उस तरह सपोर्टिव नहीं है और वहाँ पे कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की बढ़ती जा रही हैं। इसलिए वहाँ पे मसला ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। यहाँ पे सूरत में बेहतरी इसलिए तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं और वो मिल के कर रहे हैं, जबकि केपी में ऐसा नहीं है। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर ये देखने में आया है कि वो कहीं ना कहीं नर्व कोशा रखती है उन लोगों के लिए जिन्हें पहले कभी उन्होंने लाके आबाद किया था, लेकिन अब वो दहशतगर्द बन गए। सर इस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि 2025 में बलूचिस्तान में हज़ारों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए, मगर साथ ही दहशतगर्दी के वाक़यात की तादाद भी काबिल ज़िक्र रही है। तो इस पर आपका क्या तज्ज़िया है? देखिए, दहशतगर्दी का मैंने पहले जिक्र किया कि जब बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी होती है और उसके लिए हर जगह पे, हर कौम में, हर मुल्क में लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए बिकते हैं, इस्तेमाल होते हैं, बैरूनी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे पसमानदगी की गुर्बत इतनी ज्यादा है, हमने गवर्नेंस पर इतना फोकस नहीं किया हुआ, लोगों की एहसास महरूमियाँ ज्यादा है। तो आज एक पे इस्तेमाल होता है, कल दो, परसों चार। तो इसके तदारुक की जरूरत है कि अगर आप लोगों का एहसास महरूमी भी दूर करें और ये बैरूनी फंडिंग रोक दें, तो ये दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो सकती है। लेकिन ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, इसमें कमी जरूर आ सकती है।
बिल्कुल कमी आ सकती है। सर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त तज्ज़िया कार अयूब तरीन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अयूब साहब, अभी से कुछ देर कबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीआईजी सीटीडी बलूचिस्तान ने अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और इसमें बड़े नेटवर्क को बेनकाब किया गया है और काफ़ी अहम इस पर गुफ्तगू की गई है। इस पर आपका क्या तज्ज़िया है? अयूब साहब सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीआईजी सीटीडी बलूचिस्तान की इस अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर आपका क्या तज्ज़िया है? अयूब साहब से हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो गया है। हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम मकसूद मुजीब साहब से ये जानना चाहेंगे। मुजीब साहब, इस नेटवर्क को बेनकाब किया गया है और काफ़ी अहम इस पे इंकशाफात भी सामने आए हैं और दहशतगर्दों और फितना खवारिज के हवाले से भी इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुजीब साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अपने नाज़रीन को बताएंगे अब से कुछ देर कबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीआईजी सीटीडी बलूचिस्तान की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े नेटवर्क्स को बेनकाब किया गया है और कुछ अहम दहशतगर्दों के हवाले से भी इसमें डिटेल्स शामिल की गई हैं। जब इसमें बताया गया है कि रियायत हुसैन इम्तियाज़ मीर की टारगेट किलिंग का मरकज़ी सहूलतकार निकला है, जबकि इम्तियाज़ मीर की टारगेट किलिंग के लिए असलहा रियायत हुसैन ने दिया था। ज़ैनबीन ब्रिगेड ने रियायत हुसैन उर्फ मौलवी को नीम हमजा दिया था, जबकि रियायत हुसैन उर्फ मौलवी इंतहाई मतलूब और ख़तरनाक दहशतगर्द था। अब से कुछ देर कबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीआईजी सीटीडी बलूचिस्तान ने एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बड़े नेटवर्क को बेनकाब किया गया है और इसमें काफ़ी इंकशाफात भी सामने आए हैं। अपने नाज़रीन को बताएं, इसमें कहा गया है कि गिरफ्तार दहशतगर्द मुतादिद मजहबी टारगेट किलिंग्स में मुलविस रहा है। सीटीडी के हाथों ज़ैनबीन ब्रिगेड के 4 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी भी की गई है, जबकि हाई प्रोफाइल दहशतगर्द मासूम रजा को भी रियायत हुसैन ने असलहा फराहम किया था। मासूम रजा साथी इसरार गिलगिती के हाथों गिरफ्तार हुआ था, जबकि ज़ैनबीन ब्रिगेड के दहशतगर्द मासूम रजा ने भी मुतादिद टारगेट किलिंग्स की हैं। दहशतगर्द रियायत हुसैन का काम ज़ैनबीन ब्रिगेड में मरकज़ी सहूलतकार का रहा है और इस अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बच्चों के हवाले से भी बात की गई है कि बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। 17 से 18 साल के बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है और उनको बॉम्बर्स की तालीम दी जाती है और अहम काफ़ी गुफ्तगू की गई है और ये कुछ तवील गुफ्तगू के दौरान अहम इंकशाफात भी उनकी जानिब से किए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीआईजी सीटीडी बलूचिस्तान ने इस अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि हर टीम का मेंबर सिर्फ रियायत हुसैन को जानता था, आपस में उनका कोई ताल्लुक नहीं था। ताल्लुक के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि टीम का हर मेंबर सिर्फ रियायत हुसैन को ही जानता था, आपस में उनका कोई भी ताल्लुक नहीं था। रियायत हुसैन का काम असलहा ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खर्चा देने का था, जबकि ये भी कहा गया है कि मासूम रजा साथी इसरार गिलगिती के हाथों गिरफ्तार हुआ था। दहशतगर्द रियायत हुसैन का काम ज़ैनबीन ब्रिगेड में मरकज़ी सहूलतकार का है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने कराची में मुख्तलिफ टीमें भी बना रखी हैं। ये बड़ा इंकशाफ किया गया है इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कि गिरफ्तार दहशतगर्द ने कराची में मुख्तलिफ टीमें भी बना रखी थी। इस अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया गया है कि दहशतगर्द ने कराची में मुख्तलिफ टीमें बना रखी थी जो मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्द वाक़यात में मुलविस रही हैं। दहशतगर्द रियायत हुसैन का काम ज़ैनबीन ब्रिगेड में मरकज़ी सहूलतकार का है। मासूम रजा साथी इसरार गिलगिती के हाथों गिरफ्तार हुआ था। रियायत हुसैन का काम असलहा ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खर्चा देने का था।